Now, I'm well aware that in recent months there's an entire new cottage industry that's gone viral on YouTube of people visiting places that they know are going to be utterly dreadful, then pointing at them and going, look, what a shithole, and it can all get a bit formulaic. But in many cases it's still quite amusing. One of, if not the top travel vlogger on YouTube, Bald and Bankrupt, returned to India for the first time since 2018 to see whether or not it had changed. Spoiler alert, it hadn't. Well, it's 7 a.m. here in Delhi. Rat-infested Delhi. The world's worst capital, has to be said. Nightmarish levels of noise pollution. It's too hectic to walk here, and my throat hurts from the pollution. So I've jumped on the back of a cycle rickshaw. Never invite me on a trip ever again, ever, alright? 6 o'clock in the morning. It's all kicking off on the train. Trash everywhere. Maybe I spoke too soon about the rubbish. I don't know. Someone's emptied the bin. Hello. ठीक है. क्या हुआ यहाँ पे? अरे यार, बहुत गंदे हैं ना? अच्छा. I spoke too soon about how clean Indian trains are. Look at this. The beauty of India in the morning. People openly defecating in public. Or he's about to. Oh, he's about to. Oh, nice. I think that's a train making some extraordinary... That's the man having a shit. He's having a shit. Human feces on the ground. This city is unrecognisable from 5 years ago, because when I came before... Well, fuck, I'm scared to fall down. There's just shit everywhere. Human turd. Oh, God. Chronic, chaotic overpopulation. Sex problems, young maker. The #1 sex problem fixer in all of India. Because what they need here is more children, obviously. Bigger population. Oh, Sadaji. Wow. Insane traffic. Oh, my God. I mean, now I have a general idea. So this is what it is. A lot of creators, what they do is, in the beginning, they come to, and this happens on Instagram अभी हो रहा है, I think ये perpetual cycle है, इसके बारे में जितना भी बोल लो इससे कुछ नहीं होने वाला. भारतीय एक बहुत बड़ी population है भारतीयों की जो completely प्यासे हैं, भूखे हैं, गोरे लोग. और दिखता भी है, मैं कल ही बैठा हुआ था, Instagram खोला, गोरी लड़की, blonde लड़कियां डाल रही हैं, blonde, being a blonde in India, लोग ऐसे ऐसे हो गए, फोटो खिंचवा लीजिए. तुम किसको गाली बक रहे हो? तो अपने देशवासियों का व्यवहार देखो भैया. लाइन लग जाती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, नॉन स्टॉप अनएंडिंग लाइन, क्योंकि लाइन भरी जा रही है. यही व्यवहार को तुम अब इसको ऑनलाइन कर लो. ऑनलाइन क्या हो जाएगा? वो एक्सपोजर है अब मल्टीप्लाइड बाय मिलियन, 10 मिलियन ऑनलाइन. ये तो 10 मिलियन लोगों के हाथ में फोन है ना. जो उस लाइन में अभी 100 लोगों के सामने एक्सपोजर था, अब आ गया है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन. तो सेम बिहेवियर को मल्टीप्लाई करो अब 30 मिलियन से, 40 मिलियन से. सो ये हमारी जो प्यास है ना, हमारे कल्चर को ना, हमारे देश को ना, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये है बिहेवियर, एंड ये इतना ही वियर्ड है. ऐसे ही चिंगाड़ लेवल पे वियर्ड, ऑब्सीन, शर्मनाक बिहेवियर है भाई. क्योंकि आप इसको अगर दूर से देखोगे ना, अगर आपके अंदर 2 भी ब्रेन सेल्स हैं जिसको कहते हैं सेंसिबिलिटी, मेटाफोरिकल बातें कर रहा हूं मैं, तो आप ये कहोगे क्या मूर्खता, क्या. एक तरफ हम सब भाई इवॉल्व बाइपीडल प्राइमेट्स हैं जो पृथ्वी पे घूम रहे हैं. अलग अलग एनवायरमेंट्स, ज्योग्राफीज की वजह से हम लोग के मेलानिन स्किन में, आई मीन थ्रू आउट periods of time, hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of thousands of years के evolution एक्चुअल में hundreds and thousands of years से नहीं होता, millions of years लगते हैं उसको. बट एक बात कह रहा हूं, उसके से हम दिखते बस अलग हैं, बाकी हम हैं कुल मिला के सब सेम ही चीज. डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत माइनर ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, डाइटरी चेंजेस की वजह से, ये सब कुछ चीजों की वजह से हो सकता है वो कहें कि हाँ आपकी लाइक्लीहुड इसमें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है. बट आपका ट्रीटमेंट, आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, आपका हो जाएगा, क्योंकि आप इंसान और वो इंसानों का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप आते हो उस कैटेगरी में. लेकिन ये हमारे दिमाग में नहीं आती बात, तो हम क्या कर रहे हैं, गोरों को गोरा इंसान पागल हो जाते हैं हम. अब ये चीज जब 40 मिलियन में कन्वर्ट हुई तो ये आपको दिखी फैन फॉलोइंग में. ये चीज
कोई भी इंसान, अब याद रखना, जितने तुम इंस्टाग्राम छपरियों को गाली बकते हो कि ये छपरी है, व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अरे यार क्या छपरी है यार, ये टिकटॉक पे छपरी है यार। कोई भी इन्फ्लुएंसर के अंदर वो छपरी जीन्स सबके अंदर होते हैं, चाहे वो चाइना में पैदा हो, मंगोलिया में पैदा हुआ हो, जापान में पैदा हुआ हो, फिनलैंड में पैदा हुआ हो, स्वीडन में पैदा हुआ हो, किसी भी पृथ्वी के कहीं भी कोने में पैदा हुआ, छपरी जीन्स और छपरी, यानी कि उसके अंदर जो भाव है वो है कि व्हाट विल गेट मी मोर लाइक्स एंड व्यूज। तब उनको पता चलता है, ओह दिस इज वन थिंग दैट आई कैन डू इजीली एंड आई विल गेट मैसिव अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड व्यूज। तो व्हाट दे डू इज दे डू दैट। सो अक्रॉस डोमेन्स तुमको मिलेंगे यहां पे ट्रैवल ब्लॉगर में। आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोस पीपल जो कि शायद 8 साल पहले या 5 साल जब भी आया था, वो 2018 हो गया, तो 6 years ago he said very nice things. He was like हो भैया, ए देखो हम तुम्हें खूबसूरत चीजें दिखाते हैं, and he wasn't saying any of this. So this is stage 1, जहां पे आप सबको मूर्ख बनाया जाता है। वो है मुझे सिंपल ऑडियंस मिल रही है, मेरे लाइक्स बढ़ रहे हैं और मेरा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो मेरा टू बिगिन विद मेरा ऑब्जेक्टिव था। When I started this journey, my objective was this. लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ये कभी नहीं रुकने वाला। मैं बोल दे रहा हूं, सुनने वाला सुन लेगा, लिखने वाला लिख देगा कि हाँ मुझे बहुत शर्म आती है, आई एम ashamed of my तुम्हारे फेलो इंडियंस, ओ माय गॉड हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ओ अभी भी हमारी कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं, ओ माय गॉड कितने कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हो, कुछ फर्क पड़ा इससे, काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करें। लेकिन भाई करनी है, बात कर रहे हैं तो अब वही ऑब्वियस बात कर दे रहे हैं। आइए बेट एंड स्विच चल रहा है यहां पे। तुमको बेट किया, ले लिया, इंसान इंडिपेंडेंट हो गया, दुनिया भर में ट्रैवल किया, इसके बैंक एंड बॉल्ड एंड बैंकरप्ट के भयंकर एक्सपोजे भी हुए हैं। मेरा कहने मतलब ये है भाई, फाइनली उस इंसान को जो क्रेडिबिलिटी थी वो मिल गई, अब वो इंडिपेंडेंट है, इज नॉट निर्भरिंग ऑन इंडियन व्यूअरशिप एनीमोर। फाइनली जो तुम देख रहे हो ये है, नाउ ही इज रियली एक्सप्रेसिंग what he probably felt the first time, but he cut it all out, and अपने दिमाग में he cut it all out, like ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, he just said जो what will get him ahead. Now you're seeing the honest person. Now you're seeing his real views on India. Everything जो वो कैमरे में दिखा रहा है, मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, it's not CGI में made up, it's what he's seeing and probably also what he wanted to show in the first place जब वो first time आया था. Now he's like, देखो ये है देखो या कूड़ादान है ये, अब बोल रहा है वो, और यही बोल रहा है वो। आई डोंट थिंक ही केयर्स अबाउट नाउ क्रिएटिंग तुम्हारा अ व्लॉग जहां पे ही रियली वांट्स टू शो तुम्हारा यू नो लाइक ओ मेरे ह्यूमन फील्ड एक्सपीरियंसेस क्या थे। एंड मे बी दिस एंड द पॉइंट इज हाउ मेनी ऑफ सच क्रिएटर्स हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। They just say nonsense to you. Just say absolute nonsense to you because उन्हें पता है बस उन्हें nonsense कहनी है और तुम पागल की तरह I love him यही करोगे और यही करते हो। Now the thing is I don't mind this. When I look at this, yeah, it reminds me of Lucknow basically. दिल्ली में भी यही है यार। So to me this is very familiar. But here's I understand from a Westerner's point of view, this is something on like another planet to them. तुम लोग शायद अब यहाँ पे कहोगे कि ऐसा नहीं है, हमने भी वीडियोस देखे हैं, या बट those are pockets of places जो शायद वो भी चिढ़ रहे हैं। रिच इनकम कंट्रीज की बात कर रहे हो, they're very clean, they are different, and you know the difference between them and India, it is कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। Now I don't understand ये चीज इंसान भूल क्यों जाता है। We are a developing country. We are majority of people in India are very poor. Systems हमारे barely ढंग से फंक्शन करते हैं। We all know it. We all make thousands of videos on them. But maybe, 50 years में things would be very, very different. We are a very, very fast growing economy. Rapidly fast growing economy. But does that justify everything? कोई justification की बात नहीं है. Reality is what it is. But the thing उसको तुम जहां compare कर रहे हो कि England, I don't know, Switzerland or wherever. And then तुम कह रहे हो ये देखो हमारे साथ लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है, तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते, रियलिटीज डिफरेंट है वो। Constantly getting scammed and ripped off. Been scammed on my first. This is I understand this part because as an Indian you will never understand and you will never experience this. बट जहां तुम अगर इफ यू आर अ वाइट स्किन पर्सन, डजंट मैटर लड़का लड़की बुजुर्ग बच्चा आदमी कोई भी एज के मिडिल एज समथिंग, द सेकेंड यू कम आउट ऑफ एयरपोर्ट
it's relentless. The amount of people who just be like तुम्हारे खुद जाएंगे तुम्हारे को follow करने के लिए और छोड़ेंगे नहीं तुमको, वो relentless है. That's something that I really feel pity. Like imagine करो तुम आ रहे हो and you want to really travel and you're like yeah जो भी होगा होगा, and then it's just a constant unstopping everywhere by the way you go in India. It's just people coming to you जो पैसा मांग रहे हैं, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, ये होता है. प्लीज दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दो, बच्चे लेके आ जाएगा, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो. एंड देन अरे आज चलो ना 150 रुपए में 200 रुपए में 150 रुपए में, अरे चलो ना मेरी टैक्सी बैठो, और लोग हाथ पकड़ लेते हैं. लाइक इट्स लाइक jarring psychologically. That part I understand. Open, closed. Did they close? Only. Oh no, Chor Bazaar's closed. Open. Why didn't you tell me that when I started? Chor Bazaar, they told me it's closed. But the rickshaw walla only told me that after I arrived and paid. So the rickshaw walla dropped me off here and said it's an interesting place. I don't know why, it looks like every other part of Delhi. Oh, this is Delhi, right? Okay. 50 rupees, come in. Come in. 50. Lega. Scammed in Varanasi. The old, I don't have change. Oh, actually, I do have change, but not enough change. People constantly begging you for money. It's already started. I've only been here 2 minutes. Already being hassled. Oh, crikey. I'm okay, thank you. And the thing is, Thank you very much. if you're a girl, they do this 3 times relentlessly. I don't know why, because I think, लड़कियां emotional होती हैं. Yeah, I don't know कि लड़कियां शायद probably दे देती होंगी, थोड़ा सा उनको बुरा लग जाता होगा ज़्यादा. I don't know, whatever it is. Much. Okay, I'm going now. Thank you. Nice to meet you. Okay. I don't know why you're tickling me. This is weird. तुम अगर किसी भी country में हो, somebody is touching you like that. सोचो कहीं का भी, तुम इटली आते हो and people are just like grabbing you. It's the problem is this. Like people start fucking grabbing you and stuff. Bye-bye, Vaisab. Thank you very much. That was nice. Oh, nice to meet him. Excuse me. Yes? I'm okay, thank you. I'm just walking around. I'm just walking. Thank you very much. Thank you. This part I understand. Like imagine you just want to take a walk. Imagine you just want to be left alone. Imagine you're an introvert and you're just exhausted from saying no and people cannot like just listen to you. My shoulder's okay. My shoulder feels quite good today, but thank you. 4 o'clock in the morning, people are grabbing me, asking me for money. And then 100 rupees, 100 rupees. That's what happens in India, my friend. Beautiful old buildings built by the colonial British now crumbling and decaying. But look how the British building, the windows are broken, the clock has stopped working up there. If you look, we left in India a lot of beautiful architecture and things, and it just went to shit once the British went. Wow. Look at these places, the old British buildings. Look at them now overgrown, just left to rot. Look, literal plants growing through the windows, abandoned. And many such cases of this. Just reading the headlines in India today, sir. Have you seen this? Terrible story. Railway staff lynched in train for assaulting 11-year-old. You can't defend that. But for basically just pointing a camera at the reality of India, Bald and Bankrupt received quite a vehement backlash. Many Indians flooded his comments to assert that he deliberately only visited the slummiest areas. Basically, this guy deliberately visits shittiest places of the country, like the slum area of a particular city, and labels entire country as a shithole, sums up his YouTube clout. India is 90% like this, or even worse. What places are you talking about? All the country is like this. It's not his fault, but the Indians still weren't happy. Shows a small percentage of the crowded places in India and generalizes about the country. Very racist. So, this is stupid. This is also another stupid thing. That हमारे अंदर ये जो denial की capacity है. What he's showing is India. The thing is like, here's what I'm gonna say. Even when you look at a video, तुम्हारा न्यूयॉर्क में जहाँ पे ट्रैश पड़ा है, चीजें खराब हैं, homelessness है, ये है. People are not saying in the comments, that's like only 1%. People are criticizing it. Everybody's criticizing it. Including New Yorkers. They're like, we're tired of this. We hate this. तुम्हारे LA के अंदर जितने वीडियो होते, people have genuine, strong problems with that. Because ये cope हो जाता है ना. What Bank and whatever his name is, Bald and Bankrupt. What he did was he finally showed you who he is. This is what he truly feels. And there are a lot of creators, by the way, who do this. Who come to India and जो आपको simple camera लगा के who just show you like, oh, ha. And again, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा. ये मैं नहीं कह रहा उनके अंदर नेगेटिव भावना नहीं है. बिल्कुल है. So a part of this, yes, is true. You have to understand several parts can overlap with each other. One is, yeah, they probably are not loyal to you. They're not Indians. They don't care about you. Two,
Can they have feelings of like halki si prejudice? Without a doubt. And it may be like 20% that, 20% they don't care, 20% that they think इसमें ज़्यादा views आएंगे. अब मैं cater करूँगा अपनी बाहर की audience को. And they wanna see this. इस वक्त तुम्हारा already anti-India या anti-Indian let's say sentiment इंटरनेट पे फाटा हुआ है. धज्जियां उड़ा रहे हैं. एंड उसके भी पीछे कुछ रीजंस हैं. पहला यही है कि लोग इतने भयंकर लेवल पे कोप करते हैं और माँ बहन की बल्लभ शुरू हो जाते हैं लड़ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग दीज पीपल. तो भाई और वीडियो इसलिए उनको भाई जो जिसको मजा आ रहा है तुम्हारे को एक्सपोज करने में, और तुम्हारा रिएक्शन ऐसे ही होता है कि तुम बिल्कुल चिड़चिड़ा के तुम हो जाते हो और फिर उसको बैठ के गालियां बकरो, ये कर रहे हो करो, तो भाई वो और करेगा. इसको सिंपल बैकफायर इफेक्ट कहते हैं ना. There's a huge population in the netizens इंडिया में जो बैठे गोरों को गाली बकरे कि तुम्हारी सिविलाइजेशन ये है, तुम्हारी सिविलाइजेशन वो है, इंडिया को कुछ मत बोलना. तो इससे क्या हो जाता है, एक मीम क्रिएट हो जाता है कि भैया इनको पहली चीज ये क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते. दूसरी चीज ये हाईली सेंसिटिव हैं. तीसरा ये डिफेंड किसको कर रहे हैं, आओ अब और दिखाएं. एक तुम्हारा लूप क्रिएट हो जा रहा है. जितना हम और दिखाएंगे उतना ही ज्यादा हम इंसान डिनाई करेगा, उतना ही फिर वो कहेगा अब और देखो, फिर वो इंसान उसको भी डिनाई करेगा, फिर वो और देखो. उसमें क्या हो रहा है, चीज बड़ी होती चली जा रही, होती चली जा रही. अब पूरा इंटरनेट पे ऑलमोस्ट, तो अगर इंस्टाग्राम में जाओ, मेजॉरिटी ऑफ इट इज एंटी इंडिया हेट. बिकॉज कमेंट्स में अभी भी लोग लड़े पड़े, मां बहन करे पड़े. सिंपली अगर उसमें कुछ दिख रहा है तो हाँ ये है. अब कोई मोमो अपने पैर से चढ़ के बना रहा है, उसको क्या कहोगे. कोई जमीन पे खाना खिला रहा है तुमको, उस पे पैर रख के चल रहा है. अभी 500 वीडियोस हैं जिसको तुम्हें देख के पता चलता है भाई हाँ यार ये अनहाइजीनिक है. इसमें क्या लड़ रहे हो. बुरा मत मानना, कौन सी जगह से हो जहां पे कूड़ा नहीं था. आई अंडरस्टैंड इंदौर इज द ओनली सिटी मैंने अपनी इंडिया में देखा था जहां पे मैं गया था, मैंने कहा था यहाँ कूड़ा एटलीस्ट नहीं, कितनी सफाई है. इंदौर से ज्यादा सफाई मैं यूरोप में कहीं भी गया हूं. गिवन होती है, वो गिवन है. सिविक सेंस की बात हो रही है यहां पे, गवर्नमेंट की नहीं. लोग इतनी सफाई रखते हैं. एंड जितनी, इसलिए लोग अब दिमाग क्यों खराब हो रहा है यूरोपियंस का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने वो कह रहे हैं माइग्रेंट जो भी है कि वो गंदगी कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड. सोचो तुम्हारा कल्चर में हमेशा से तुम्हारे अंदर एक चीज सिखाई थी तुमको कि भैया तुम्हें सफाई रखनी है, उसका तुम सडनली देख रहे हो कूड़ा कूड़ा पड़ा रहता है, तुम्हारा दिमाग खराब होने लग जाएगा. तीसरी चीज, एक और चीज है, आउट ऑफ नोवेयर इन द लास्ट 5 years एक भयंकर इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस वर्कर्स लोगों को दिख रहे हैं. पीपल हु डोंट स्पीक द लैंग्वेज एट ऑल, इंग्लिश बेसिक नहीं आती उनको, बहुत ज्यादा होड़ है. मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे भी कहा से, क्योंकि मैं भी रिसेंटली देखने लग गया हूं, इतने ज्यादा. और खड़े होकर मॉल में ऐसे बस घूरते रहते हैं वो. एंड इट मेक्स मी ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक क्या कर रहा है यार. आई एक्चुअली वेंट एंड टॉक टू सम yesterday or day before yesterday, and पंजाब से थे वो. They didn't speak obviously Hindi, Punjabi मतलब टूटी, but we interacted and I asked them like भाई कहाँ से हो and everything and all of this. But they were just standing there like बहुत सारे, and I'm like I was just confused. I'm like तुम इस कंट्री की ना लैंग्वेज बोलते हो, ना तुम्हें इंग्लिश आती है. How are you going to communicate? यहाँ पे कोई नहीं बोलने वाला हिंदी या पंजाबी. You're not students clearly. You're not, तुम्हारा यहाँ पे कोई, तुम MNC में काम करने नहीं आ रहे हो clearly. So I understand क्यों people might suddenly people have shifted from like okay migrants to also Indians, because it's like insane amount of Indians are coming, and I understand that. And तुम्हारे जितने भी चीजें हैं, स्मेल वाले जोक्स, उसमें भी रेसिज्म है बहुत ज्यादा यार. बट उसमें तुम्हें फिर मिलेगा भी. स्टीरियोटाइप्स एक एग्जांपल से बनते हैं. तुम्हें बस एक इंसान के बगल में होना है, तुम्हें अगर विफ आ गई, you might start propagating the stereotype. मैं एक और बात बोलता हूँ, लास्ट चीज. This is also a very right wing thing by the way. इंडिया में हमेशा से एक राइट विंग बहुत चीज कहती है. उनको लगता था हम राइट विंग हैं, और बाकी हम जितने भी गोरों को देखते जो राइट विंग होते, हमें लगता था हमारे बड़े दोस्त हैं ये, हम सब दोस्त हैं, हम सब राइट विंगर्स हैं. Yeah. What you never realize is for the longest time, राइट विंग के अंदर ही, I'm not saying all right wing, but there is again हर चीज में ओवरलैप होता है, सब कुछ स्पेक्ट्रम है. There was always in a giant portion of that group a feeling of white supremacy. अगर तुम्हें लगता नहीं थी तो तुम भाई पता नहीं कौन से. मैं हमेशा से एक चीज सोचता था कि मैं इंटरनेट पे फॉर years मैंने देखा कि राइट विंगर्स फील सच किनशिप विद तुम्हारे ग्लोबली राइट विंगरों के साथ. एंड आई ऑलवेज यूज्ड इन माय माइंड थिंक कि दे नॉट गोना लाइक यू. आई एम नॉट सेइंग ऑल राइट विंगर्स, बट देयर इज अ जायंट पोर्शन. यू नो एक कोट है, एक्सट्रीमिस्ट आर द स्नेक्स इन द बुशेस and moderates are the bushes that hide the snakes. So right wingers में भी यही मैं चीज देखता हूँ यार. तुम किसी की बात कर लो जो ग्रुप में होते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट को छुपाने वाला वही होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम है.
मॉडरेट इंसान होगा कि हाँ ठीक है यार, मैं मे बी 80% इश्यूज के साथ और 20% मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है. एक्सट्रीमिस्ट बस वही इंसान है जिसको 60% प्रॉब्लम है. दैट्स इट, दैट्स वो एक्सट्रीम में चला गया है. पर वो 20% वाला भी रेजोनेट करता है टू अ डिग्री. एंड अब क्या हो रहा है, अब तुम्हारी ये चीज जो जितनी भावना आ रही है, मोस्टली तुम देखोगे राइट विंग उधर से ही तो आ रही है. ये जो है पॉल जोसेफ वॉटसन, ही इज अ राइट विंग पर्सन. अब इसके तुम्हारे जितने मुस्लिम रेटोरिक होंगे एबीसी चैनल पे, आई एम प्रीटी श्योर तुम कहोगे वाह आहा, अभी इसने इंडिया में सेम भावना से मुंह पे देख लो, उसकी कोई चेंज नहीं है, उसने बोल दिया. अब तुम्हें बारे हो रहा है कि क्या, व्हाट कलर स्किन डू यू थिंक यू हैव, why were you thinking all along कि तुम्हारे मित्र होंगे. Like I love how इंडिया में क्या है, we are all right wingers, और हम बाहर के राइट विंगर से सॉर्ट ऑफ लिबरल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं. ट्रीट करेंगे तुम्हें एज अ लिबरल. ये आओ आ रहे, तुम तो हमारे अपने हो यार. Video. Generalization meaning it's generally true. You know it's a great country when its citizens have to spam the comments over and over telling you so and making excuses for everything. One dude's even campaigning for the Indian government to remove the video. Another called for Ball to be banned from India entirely. And I even saw others demanding his arrest, despite the fact that he'd obviously left the country before... Because I think हो क्या गया कि I think our knee-jerk reaction to everything on the, मैं ये खुद भी comments में notice करता हूँ कि if you criticize anything and it's valid criticism, comment somebody one of the top comments हमेशा होता है arrest this person, which I don't understand, which is this idea of tyranny that we are subscribing to कि criticism, discourse, free speech should be above government intervention. And हमारे most stupid behaviors में भी गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए. I don't know, these are basic right wing things by the way. इंडियन के राइट विंग वाले they keep asking the government and it's like कि तुम, that's far left, that's what far left, that's communism. गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी स्पीच अलाउड है, कौन सी स्पीच अलाउड नहीं है, हम तुम्हें जेल में डाल दें. I don't understand this, but we Indians are very very far left. हमारी गवर्नमेंट की आधी ज्यादा पॉलिसीज तो सोशलिस्ट ही हैं, लेट्स बी रियल. बट ठीक है, छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा मैं. Posting the video. Bald and Bankrupt cherry-picked the worst places to show in India using the worst mode of transportation and decided to be a typical white guy who couldn't stop getting boners over bygone days of the Raj. He's selling poverty hate porn to an audience that already hates India. I mean, he literally went to the capital city, took one of the most popular forms of public transportation. Stand with a second. I think I'll have to watch the whole thing probably. Manifestly observable reality. They said 6 hour delay, but let's be realistic. That train ain't coming. So do I hang around here all day? Do I leave India? That's my preferred option. And to be fair, there were also at least an equal amount of people in his comments, many of them Indians, acknowledging that India was very much not a nice place to live. Finally, someone showing the real India. 99% of cities look like this, while in the video itself... Like, there is also again तुम्हारा portion of India जिसमें तुम्हारा वो भी है, खुद के ही तुम्हारा self-loathing, self-hatred. See, this is how I see it. It is like this, without a doubt. But I see this as something that will change. I also see it from the context of economics, which is very important. And I also see it from तुम्हारी current predicament ये है कि हमारी, which is also a boon. We have the largest young population in the world. But problem ये है कि unemployment. Problem ये है कि चीज़ों का development related ये सब चीज़ें बहुत problematic हैं. Bald wasn't entirely negative. India is a total mess. It's a disaster. It's pretty much a failed state, but you have to say that people are very friendly and very nice. So as much as oh fuck, I've been bit by another mosquito. As much as I do... I'm getting splashed by this thing. Mate. I say you turn around, going back. As much as I... £6 for this. As much as I do say that India's a bit of a mess, the people are very friendly. And that's more than you can say in some countries. And then made his feelings clear with a comment below the video, remarking that in the past he viewed such squalor as exciting and enriching, but now that he's older is, quote, disgusted more and more by such things and appreciate my life in Europe more than ever. This didn't go down well with the Indian media, which today is up in arms. Foreigner calls India most frustrating place to travel, triggers racism. Well, again, please समझो, it's comparative. Ask any person. Any Indian person जिसके पास इतना पैसा है कि उन्होंने ढंग से ट्रैवल किया है, like अगर उनसे ऑनेस्टी निकलवा दोगे तो वो करेंगे. Of course, there's a
जायंट डिफरेंस। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इंडिया में आते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि भाई ये यूरोप नहीं है। मैं जहां तक देखता हूं इंडिया को, इट्स लाइक अ प्लेस दैट शोज द केओस ऑफ ह्यूमन नेचर। दैट्स हाउ आई सी इट। आई हैव ऑलवेज सीन इट लाइक दैट बिकॉज आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई हेट नॉइज पोल्यूशन, आई हेट इट। मेरे कान आई थिंक एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, जो भी मुझे नहीं पता था। मैं जब 1 घंटे भी बाहर निकलता था, ये शायद मैंने यूट्यूब पे कई बार बात करी है, मैं जब वापस आता था मैं सीधे सो जाता था। मेरा सर इतना दर्द हो रहा होता था। 1 घंटा भी अगर मैं गया हूं कैब में बैठ के, कहीं कनॉट प्लेस गया था, कोई काम था, वापस आया तो मुझे 2-3 घंटे लगे, बिकॉज उसका 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा वापस आने में लगा, और कुछ टाइम उस जगह पे लगा। मैं खत्म हो चुका था। इवन तो 2 बज रहे हैं, मैं सिंपल बेड पे लेट जाता था और सो जाता था, क्योंकि मेरा इतना सर दर्द हो रहा, मुझे पता है मैं कुछ नहीं करने लायक रहा। आई थिंक 80 डेसिबल्स या समथिंग होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए है, या 70 हो सकता है, ये बिकॉज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, मैं भूल गया हूं। बट ये नॉर्मल साउंड है दैट इज मेंट टू फॉल इन ह्यूमन ईयर्स। रोड ट्रैफिक, हॉन्किंग, इन सब के साउंड्स वे अबव है। इन सब चीजों का डायरेक्ट हेल्थ पे, मॉर्टेलिटी पे फर्क पड़ता है नॉइज पोल्यूशन का। एंड इंडियंस 24/7 नॉइज पोल्यूशन से एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि आप जब भी बाहर निकल रहे हो एक खतरनाक लेवल पे हॉन्किंग चल रही है, खतरनाक लेवल पे नॉइज पोल्यूशन है। और हॉन्किंग किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको एग्जिस्ट ही नहीं मिलेगी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं छोटा सा चेंज यहां पे एक एग्जांपल का बता रहा हूं, लाइक दैट होल थिंग जस्ट गेट्स वाइप्ड अवे। कोई हॉन्क कर ही नहीं रहा। पीपल हॉन्क व्हेन अगर रेड लाइट ग्रीन पे टर्न कर गई एंड द पर्सन इज नॉट मूविंग, सो देन होता है कि एक सिंपल हॉन्क देता है इंसान कि भैया उठो। बट दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव बीन फ्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। The thing is, I think at the bottom of it is economics. We are a very poor nation. We are a rapidly fast growing economy, sure. अगर तुम वो परसेंटेज से बात करोगे, अरे आज 7.2 से करी, अरे 8 से करी, अरे 6 point something से करी, that has nothing to do with again the core reality जो तुम रोड पे देख रहे होते हो, वो एक अलग चीज है। उसमें बहुत 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 ज्यादा टाइम लगेगा। सरकार जब तुम्हारे लॉज लाना चाहती है तो वो बैक कर लेती है। अभी तुम्हारे वो दिल्ली में लाए भी थे बड़े बड़े फाइन्स, फिर उन्होंने पीछे ले लिए फाइन्स। ये सब चीजों से ये हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ी सिविक सेंस लोगों के अंदर आएगा। आप अगर रेड लाइट तोड़ रहे हो, आप पे फाइन लग रहा बड़ा, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, करके दिखाओ, तुम्हारे पे फाइन लग जाएगा। वो यहां पे ट्राई किया था उन्होंने, वापस ले लिया, लोग इतना चिढ़ने लग गए। तो बात यह कि इंसान को ही नहीं बदलना ना, और सरकार केटर कर जाती है क्योंकि उनको वोट चाहिए। भाई हम नाराज नहीं करेंगे, अगली बार हमको वोट ही नहीं करेंगे लोग। ये सिस्टम है फिर बहुत बड़ा against Indians. Personally speaking, I still find it utterly hilarious that naive young Western tourists visit India, expecting upon their return to pretentiously boast to all their friends about how enlightening and culturally enriching it was. Maybe to even... It can be. See, this is where you are a fucking idiot. It is a land जहां से emanate हुई है all spirituality. Source of birth ये है. So to say कि then that just exposes how stupid you are. And this is what I see. The problem is this. तुम्हारे जितने राइट विंग मोस्टली कमेंटेटर्स होते हैं, उनमें तुम्हें एक वेस्टर्न सुप्रीमेसी का स्टैंड पॉइंट मिलता है। They just literally starting point होता है उनका वेस्टर्न सुप्रीमेसी, and the amount of lack of information they have about Eastern cultures is astounding. मतलब जापान की भी अगर ये बात करेंगे तो ये कैपिटलिस्टिक सेंस से ही बात करेंगे। साउथ कोरिया की बात करेंगे तो कैपिटलिस्टिक। इनको कल्चर, हिस्ट्री कुछ नहीं पता किसी की भी ईस्टर्न। तो पॉइंट इनका यही है ना वेस्टर्न का, हमारी सुप्रीमेसी सब कुछ है, हमारा कल्चर सब कुछ है। And haughtily proclaimed that it helped them find themselves, when in reality all they found was this. Someone just came up to me, put paint on one side of my face and grabbed my boob really hard with the other hand. And I haven't even made it down the street yet. I'm not so keen on visiting. So this is sexual harassment. This is also true. ये भी होता है। Again, दो चीजों को क्या गंदी तरह से स्प्लाइस करके तुमने पुट किया। तुमने कहा भाई plenty of people come here for spiritual reasons, ठीक है, पर जब भी वो यहाँ आते हैं उनको मिलता ये है। That's not true. होली के बहुत सारे वीडियोस है, हमने खुद देखे जहां पे लोग छेड़छाड़ी कर रहे हैं। अरेस्ट होना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। जो ये कर रहा है उनको जेल में होना चाहिए। देखो भाई, सिविक सेंस में जहां तक बात आ गई, गोरों की जहां तक बात आ गई, जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में करी, उसको तो मैं डिफेंड कर ही नहीं सकता। जो ठरक है इस देश की, उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। जो ठरकी बैठे हुए हैं इस देश में, उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। जब भारतीय औरतें सेफ नहीं हैं तो गोरी जिसको देख देख के इंसान मुट्ठलबाजी में पता नहीं किस लेवल पे पागल हुआ है भाई, वहां पे तो आदमी जो है इस नेचर का वो तो चांस मारेगा ही मारेगा, बदतमीजी करेगा। और उसमें मैं 500 बार बात कर चुका हूं, आपको बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आने पड़ेंगे और बहुत एक्सपीडिएंट लॉज आने पड़ेंगे। आप तुरंत डालो, जहां पे एविडेंस है अंदर डालो और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजाएं दो, ताकि
आदमी का टिपर ले अंदर, थर-थर कांपे आदमी. India, but given that I live in the UK, where 250,000 Indians emigrated to in 2023 alone, India seems to be very keen on visiting me. Okay.